Dear students, renewable power generation subject. Now we are discussing this lecture number 7, that is Indian renewable energy achievements and application. Basically, in this particular lecture we are discussing the up-to-date data of Indian renewable energy and their achievements recently. Renewable energy achievements, first we are going to discuss. Indian renewable power installed capacity has reached over 70 gigawatt. Over 40 gigawatt renewable power capacities are under different stages of construction and tenders. Tenders, that means they have floated to construct through the different private organizations or vendors. Stages of constructions, that means already tender is issued, they have opened and they have floated or permitted to go for the construction from the different agencies, and the construction is to be started. The government said around $40 billion is invested was made in renewable energy in India during last 4 years. Here we are discussing the achievements for previous 4 years. That is more important because last 4 years the speed of development for the renewable energy is so fast in India. Recently, India stands 4th in wind power, 5th in renewable power, and 6th in solar power installed capacity globally. Globally, that means we are standing in the world. So we can say that we are in very good position and continuously we are doing our best effort for improvement, that is continuous effort. India's solar energy capacity increased by over 8 times from 2.63 gigawatt in 2014 to 22 gigawatt. You can see that how fast we are growing in the Indian solar development, and it is very important to go for the solar energy because we have already a good power capacity based on solar. Good solar window is available in India. Solar window, as you all know, it is the time duration between 9 to 9:30 am to around 4:30 or 4 pm. During this time sunlight is available for power generation, that is called the solar window. India's wind energy capacity increased by 1.6 times from 21 gigawatt in 2014 to 34 gigawatt. We are also in very good position in wind energy capacity increment, and we are continuously doing our efforts for the development of wind energy, and what possible R&D we can do, we are doing on that. India announced bidding for 115 gigawatt renewable power projects up to March 2020. अनाउंस बिडिंग का मतलब ये होता है कि 2020 तक हमको 115 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल करना है. उसके लिए हम लोग मार्केट में इंफॉर्मेशन फ्लोट कर देते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इंटरेस्टेड कंपनीज are coming to that platform to show their interest for construction and development of these projects.
India is well on track to achieving 175 gigawatt target of installed renewable energy capacity. 175 गीगावाट को भी हम पूरा करने की दिशा में पूरी तरीके से अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं. Now come to the different projects through you can understand that कि इंडिया में हम इस समय बोल तो रहे हैं कि 175 गीगावाट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन किन किन प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दैट इज़ टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. जैसे मैं कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम बताता हूँ आपको. जैसे कुसुम प्रोजेक्ट हुआ. कंप्लीटली वी कैन से दैट किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्कीम, इसका नाम है कुसुम प्रोजेक्ट. 27.5 lakhs ऑफ सोलर पंप, जिसमें कि 17.5 lakhs स्टैंड अलोन प्लस 10 lakhs ग्रिड कनेक्टेड सोलर पंप्स हम लोग इंस्टॉल करने का प्लान है. स्टैंड अलोन मतलब कि दैट पर्टिकुलर सोलर पंप सिस्टम मतलब ये हुआ कि पूरा पैनल प्लस पंप सेट इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन है. उसको ग्रिड से या एमपीवी या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से सप्लाई नहीं है. वो स्टैंड अलोन सिस्टम है, इंडिपेंडेंट है, खुद अपना कभी भी आप चालू कर सकते हो, कभी भी बंद कर सकते हो. और 10 lakhs ग्रिड कनेक्टेड है. ग्रिड कनेक्टेड का मतलब ये है कि वहाँ पर दोनों पावर अवेलेबल है. जो सोलर पैनल लगाए हुए हैं वो ग्रिड को पावर दे रहे हैं, साथ ही साथ वो पंप को भी ऑपरेट कर रहे हैं. 10 gigawatt of solar plants of intermediate capacity of 0.5 to 2 megawatt. छोटे छोटे 0.5 मेगावाट से लेके 2 मेगावाट तक के प्लांट, जहाँ पर कि हमारा लाइट इंटेंसिटी बहुत अच्छी है और बैरन लैंड है, वहाँ पर हम ये छोटे छोटे सोलर पावर प्लांट्स भी लगा रहे हैं. 0.5 मेगावाट हो गया, 1 मेगावाट हो गया, 1.5 मेगावाट हो गया, 2 मेगावाट हो गया, डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी financial status of the private organizations. We are giving the permissions through state electricity board to install these types of plants. 50,000 grid connected tube wells, lift irrigation and drinking water projects. 50,000 grid connected tube wells मतलब कुएं से पानी निकालने के लिए जो मोटर लगी रहती है वो हमने सोलर से पावर की हुई है. लिफ्ट इरिगेशंस एंड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे गांव में जहां पर पीने के लिए पानी की दिक्कत है वहां हमने इंडिपेंडेंट पावर सोलर प्लांट लगा दिए और पंप लगा दिए जो कुएं से पानी खींच के नलों में पानी मुहैया करा रहे हैं. लिफ्ट इरिगेशन पर्पस से के लिए हम कुएं से पानी खींच रहे हैं या तालाब से पानी खींच रहे हैं, तो उसमें जो मोटर और पंप लग रही है वो हमारे सोलर इंडिपेंडेंट छोटे छोटे 1 किलोवाट 2 किलोवाट के प्लांट से डायरेक्टली खींच रहे हैं और एक बहुत अच्छी फैसिलिटी अवेल करा रहे हैं हम गाँव में कि छोटे छोटे 1-1 किलोवाट 2-2 किलोवाट या 3 किलोवाट के पैनल लगा के हम उनको मोटर्स को रन कर रहे हैं और पानी की फैसिलिटी जहाँ पर नहीं है वहाँ पर हम अवेल करा रहे हैं. अगला जो प्रोजेक्ट है सृष्टि, सस्टेनेबल रूफटॉप इम्प्लीमेंटेशन फॉर सोलर ट्रांसफिगरेशन ऑफ इंडिया. इसमें क्या है कि जो छतों पे आप रूफटॉप प्लांट लगा दे रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंज्यूमिंग कैपेसिटी. जो घर हैं जिनकी कैपेसिटी यदि जैसे कि 2 किलोवाट से फुलफ़िल हो रही है तो वहाँ पर 2 किलोवाट का प्लांट लगाया है. यदि 3 किलोवाट से फुलफ़िल हो रही है तो 3 किलोवाट का, ये अप टू 5 किलोवाट हम घरों की छत पर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, जिससे कि हम पूरी तरीके से जो डिपेंडेंसी है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से उसको
कुछ हद तक कम किया जा रहा है। और जो छोटे छोटे गांव हैं वहाँ पर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली अवेलेबल नहीं है, तो इस तरीके के छोटे छोटे प्लांट लगाकर हम वहाँ पर पावर अवेल करा रहे हैं। India notified competitive bidding guidelines for procurement of solar and wind power in 2017. India discovered the lowest tariff of 2.44 per unit for solar and 2.43 per unit for wind. India will inaugurate the first solar plant bid at ₹2.44 in August 2018. ₹2.44 या ₹2.45 यदि हमको एक यूनिट कॉस्ट आती है तो वो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जब हम पावर कंज्यूम करते हैं तो करीब करीब, जैसा आप लोग ने भी देखा होगा कि आपके यहाँ जो बिल आता है वो एवरेज करीब करीब 6 से 7 रुपये पर यूनिट पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अलग अलग बैचेस बनाए हुए हैं कि जैसे यदि 100 यूनिट्स आप यूज़ करते हो, मतलब 100 किलोवाट आवर आप यूज़ करते हो तो इतना स्लॉट में आपका बिल आएगा। यदि इससे आप ज़्यादा यूज़ करते हो, 200 यूनिट 300 यूनिट यूज़ करते हो, तो उसकी बिलिंग का स्लॉट अलग रहेगा। तो यदि हमको ₹2.44 ₹2.43 पर यदि ये पर यूनिट कॉस्टिंग आती है तो दैट इज़ ए गुड इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी। India has waived the interstate transmission system charges and losses for interstate sale of solar and wind power for projects to be commissioned by March 2022. This will encourage setting up the projects in states that have greater resource potential and availability of suitable land. इसका मतलब ये हो गया waive the interstate transmission system charges, मतलब यदि आप एक स्टेट में पावर बनाते हो और उसको दूसरे स्टेट्स में भेजते हो तो उसका इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम जो चार्जेस होते हैं वो नहीं लगेंगे। जैसा कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा 750 मेगावाट का जो रीवा में प्लांट लगा है उसकी पावर दिल्ली मेट्रो को जा रही है, तो ये इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया ना, तो इसके ये चार्जेस है वो वेव्ड ऑफ कर दिया है। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पावर जाएगा तो उसका कोई अलग से चार्ज नहीं लिया जाएगा। और ये मार्च 2022 तक ऐसे और भी 2 और 3 प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जो कि मेगावाट कैपेसिटी के हैं। जैसा कि अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 750 मेगावाट का सोलर प्लांट इंडिया को दिया है, इनॉग्रेट किया है, उसका डिटेल्स हमने पिछली क्लास में देखा था। वही और भी बहुत सारे कमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इस तरीके के। अगली जो बात करते हैं, द मिनिस्ट्री हैज़ ऑल्सो ब्रॉट आउट 1 टेंडर फॉर सेटिंग अप 2000 मेगावाट सोलर विंड हाइब्रिड इन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स। अभी क्या हो रहा है कि अकेला हम या तो सोलर प्लांट लगा रहे हैं या विंड प्लांट लगा रहे हैं, बट इफ़ पोटेंशियल ऑफ बोथ आइदर सोलर एंड विंड, यदि दोनों का पोटेंशियल किसी पर्टिकुलर प्लेस पे अवेलेबल है तो हम उन दोनों को हाइब्रिड करके भी काफ़ी बड़ी कैपेसिटीज़ के प्लांट लगा सकते हैं और उस पर हम पूरा जोर दे रहे हैं। इंडिया हैज़ एनहांस्ड टारगेट फॉर सोलर पार्क फ्रॉम 20 गीगावाट टू 40 गीगावाट। India has sanctioned 41 solar park in 21 states with aggregate capacity of over 26 gigawatt. Largest solar park of 2 gigawatt capacity in Pavagadh, Karnataka is under implementation. India announced new solar park policy to encourage participation by private parties and CPSUs in setting up solar park। ये जो सोलर पार्क की बात हो रही है 20 गीगावाट टू 40 गीगावाट और जो 41 सोलर पार्क की परमिशन सैंक्शन की है 21 स्टेट्स में, उसका पहला जो रीवा पावर प्लांट है एग्जाम्पल है, जो कि 7 जुलाई को हमने देखा कि
लॉन्च किया गया है, जिसमें कि 750 मेगावाट का पहला प्लांट है। दिस पर्टिकुलर प्लांट इज अंडर दीज पॉलिसी, जो पॉलिसी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जिसमें कि ये डिसाइड किया गया है टारगेट 20 गीगावाट से 40 गीगावाट। उसी का पहला जो प्रोजेक्ट है वो रीवा सोलर प्लांट है। और इस तरीके के अभी एमपी में 2 प्लांट और आ रहे हैं, 250 या 250 या 500 मेगावाट के हैं वो। आगे जब भी वो आते हैं तो उसका डिटेल्स हम आपको देंगे। Offshore from Tamil Nadu and Gujarat coast provides among the best location from wind power generation. India has formulates offshore wind power policy and expression of interest for initial 1 gigawatt offshore wind power has already been issued. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विंड पावर प्लांट की। ऑफशोर मतलब ये हुआ कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर विंड का जो फ्लो होता है वो नॉर्मल प्लेसेस से ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर आपका विंड पावर प्लांट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। इंडिया हैज़ इशूड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेटिंग अप सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज लिंक्ड विद एश्योर्ड ऑफ टेक ऑफ 20 गीगावाट। जिस रेट से हम लोग सोलर पावर प्लांट्स लगा रहे हैं, सोलर पैनल्स की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो हम इंडिया में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेटिंग अप सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग, अभी प्रेजेंट स्टेटस में सोलर पैनल जो आ रहे थे वो हम दूसरी कंट्रीज से ले रहे थे, चाइना से, जर्मनी से, बट अभी हम खुद इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर पूरा जोर दे रहे हैं। जैसे कि कच्छ, गुजरात, मुंद्रा में अदानी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और भी विक्रम सोलर का भी है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कोशिश कर रही है कि पैनल्स यदि इंडिया में ही सस्ते रेट पे अवेलेबल हो जाए तो हमारा ये जो प्लान है वो बहुत तेज़ी से इम्प्लीमेंट हो सकता है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट सीक क्रिएशन ऑफ ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिन्यूएबल पावर इवैक्यूएशन एंड टू reshape grid for future requirement. The intra-state transmission scheme being implemented by 8 renewable rich states with an investment of 10,141 crore will set up about 9,400 kilometer transmission lines and substation of total capacity of 19,000 MVA will be completed by March 2020। तो हम बेसिकली इतनी सारी इंफॉर्मेशंस ये देख रहे हैं कि अभी तक इंडिया ने क्या अचीव कर लिया है इन रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स के तहत जितने भी पावर प्लांट हम लगा रहे हैं उन पावर को हम ग्रिड में डाल देते हैं और इससे फिर जहाँ जहाँ जिस स्टेट में जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम पावर को अवेल कर लेते हैं। उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे 10,141 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है 9,400 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइंस के लिए, और उस पर जो सब स्टेशन के लिए कॉस्टिंग दी गई है 19,000 MVA एंड दैट इज़ प्लान टू कंप्लीट बाय मार्च 2020। Foreign investors can enter into joint venture with an Indian partner for financially or technical collaboration and for setting up of renewable energy based power generation projects. 100% foreign investment as equity qualifies for automatic approval. India is also encouraging foreign investors to set up renewable energy based power generation projects on build own operate basis। मतलब ये है
कि आप खुद ही बनाएं और चलाएं। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू द जॉइंट वेंचर इनवाइट कर रही है कि आप इंडिया में आएँ, आइदर फाइनेंशियली पार्टनर बने और टेक्निकल पार्टनर की कोलैबोरेशन से आप मैक्सिमम कैपेसिटी के प्लांट्स लगाएं और उसको रन करें। उससे एक और फ़ायदा ये होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट होने के कारण हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, बहुत सारे इंजीनियर्स को नौकरी मिलेगी और स्वाभाविक है जो हमारी कॉस्टिंग पर यूनिट कॉस्टिंग जो बढ़ रही है कम होगी। रिन्यूएबल energy projects set up in last 4 years have created around 10 million man-days employment per annum. The Surya Mitra program has trained over 18,630 Surya Mitras up to 31st March of 2019. जैसा कि मैंने पहले कहा कि डेफिनेटली जब इतने सारे प्लांट्स आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो अराउंड 10 मिलियन मैन डेज एम्प्लॉयमेंट विल श्योरली टू बी डेवलप्ड पर ईयर। सूर्य मित्र प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इसमें ग्रेजुएट इंजीनियर्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को और ITIs को हम सोलर पावर प्लांट की ट्रेनिंग देते हैं और पॉसिबल साइट्स पर उनको जॉब भी अवेल कराया जाता है। इतनी सारी चीज़ें हमने देखी कि प्रेजेंट स्टेटस में इंडिया अभी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस और प्लांट्स पर हम कहाँ पर हैं और लास्ट 4 इयर्स में हमने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को लगाया है। यहाँ पर मैं कंप्लीट प्रोग्रेस को बताता हूँ। इस पूरे चार्ट में आपको दिख जाएगा कि हम अभी प्रेजेंट स्टेटस में कहाँ पर हैं। Progress of renewables in India during the last 4.5 years 2014 से लेके 2019 तक सेक्टर्स वाइज इसको डिवाइड किया है। विंड पावर में, स्मॉल हाइड्रो में, बायो पावर में, सोलार पावर में। और ये क्यूमुलेटिव अचीवमेंट जो हमारा 2014 में था, अब वो इस समय 2018 में क्या स्टेटस है। बेसिकली ये 2018 लिखा है लेकिन इसमें जो डेटा है वो 2019 तक का है। विंड पावर की जब हम बात करते हैं तो 2014 में 21,042.57 दैट इज 21,042 मेगावाट थी, जो 15 में बढ़कर आप देख रहे हो 14-15 में ये बढ़कर 2311 मतलब 2311 मेगावाट की कैपेसिटी एडिशन हुई है। और बढ़ते बढ़ते ये वो जो 18-19 में जो कैपेसिटी एडिशन हुआ है वो 841.35 मेगावाट का हुआ है। और इस वक्त क्यूमुलेटिव अचीवमेंट जो है वो आप देख सकते हो 34,986.35 मेगावाट है इस समय। 34,986.35 मेगावाट। स्मॉल हाइड्रो की बात करें तो 2014 में ये 3,803.74 मेगावाट थी, जो कि 14-15 में 251.61 मेगावाट कैपेसिटी एडिशन हुआ। 15-16 में 2,218 मेगावाट बढ़ा। 16-17 में थोड़ा कम हुआ 105 मेगावाट। 17-18 में करीब करीब सिमिलर 106 मेगावाट। 18-19 में और भी थोड़ा कम हुआ है 21.15 मेगावाट। स्मॉल हाइड्रो के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही सीजनल बेसिस पे होता है। यदि वाटर का हेड अवेलेबल है या फिर आपके जो स्मॉल हाइड्रो प्लांट्स होते हैं वो थर्मल पावर प्लांट के टेल रेस पर अवेलेबल होते हैं, तो वो
अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, कंडीशनल होते हैं, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया और जो क्यूमुलेटिव अचीवमेंट है वो 4506 मेगावाट का हो पाया है। बायो पावर की बात करते हैं तो 2014 में ये 8041 मेगावाट के पास था, जो कि इस समय 9546 मेगावाट की स्टेटस है। सोलर पावर की बात करें 2631.9 दैट इज़ 2632 मेगावाट के आसपास था 2014 में, और 14-15 में फिर ये 1112 मेगावाट का इंक्रीमेंट हुआ। 15-16 में ये 3000 मेगावाट के आसपास इंक्रीमेंट हुआ। 16-17 में 5500 मेगावाट 5500 मेगावाट का इंक्रीमेंट हुआ। और अभी जो क्यूमुलेटिव अचीवमेंट है 24,312.58 मेगावाट प्रेजेंट स्टेटस में है। और टोटल जो हम देखते हैं कि 35,519 मेगावाट था, जो अब बढ़ के 73,315.79 मेगावाट इस समय है। तो ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। ड्यूरिंग लास्ट 4-5 ईयर्स में हमने रिन्यूएबल पावर जनरेशन में बहुत एक माइलस्टोन स्टैब्लिश किया है, एंड दैट इज़ टू बी कंटिन्यू फॉर कमिंग ईयर्स। डेफिनेटली वी अश्योर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ डूइंग देयर कंप्लीट एफर्ट टू इंक्रीज द रिन्यूएबल पावर जनरेशन। ऑफ ग्रिड कैप्टिव पावर की बात करें तो ऑफ ग्रिड और कैप्टिव, ऑफ ग्रिड का मतलब ये होता है कि आप यू आर नॉट supplying the power to the grid or not feeding the power to the grid, that is independent, solely आप ही यूज़ कर रहे हो। और कैप्टिव पावर का मतलब ये होता है कि उसमें भी हम खुद ही यूज़ करते हैं। कैप्टिव पावर में ये भी होता है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ जो रहती हैं वो अपने खुद के यूज़ के लिए जब इंडिपेंडेंट छोटे पावर प्लांट्स लगाकर खुद अपनी रिक्वायरमेंट की पूर्ति करते हैं तो उसको कैप्टिव पावर प्लांट्स कहा जाता है। इस पर्टिकुलर स्टेटस की जब हम बात करते हैं तो इसमें सेक्टर्स वेस्ट टू एनर्जी, बायोमास गैसीफायर्स, एसपीवी सिस्टम्स। 2014-15 की बात करें तो 12 मेगावाट के आसपास था ये, जो कि अभी 117.528 मेगावाट के आसपास अभी हमारे स्टेटस है। बायोमास गैसीफायर्स की बात करें तो 6.76 मेगावाट के बाद अभी हम 163.37 मेगावाट पर हैं। एसपीवी सिस्टम्स, सोलर पीवी सिस्टम्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि 60 मेगावाट के बाद 767.51 मेगावाट पर अभी हम हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प के कारण सारे स्टेट्स में रिन्यूएबल पावर का इतना स्ट्रक्चर जो इंस्टॉल हो रहा है और ये कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि हमारे अचीवमेंट्स जो हैं वो बढ़ते ही चले जाएंगे। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया लास्ट 4 to 5 ईयर्स में हम रिन्यूएबल पावर में क्या क्या अचीवमेंट्स तक पहुँचे हैं और हम अपना टोटल पावर जनरेशन किस परसेंटेज से कितना परसेंटेज तक पहुँच चुके हैं। तो हमने प्रीवियसली 6 सेमेस्टर्स में जो 6 लेक्चर्स में ये देखा कि कितना रिन्यूएबल पावर इंडिया में किन किन प्रोजेक्ट्स में जनरेट हो रहा है और अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।